On your screens are the visuals also that we're continuing to get you from also the Shambu border, where the farmers have reached. Hundreds of them are standing at the Patiala-Ambala highway, refusing to back off. Their attempts to water cannon the protesters, tear gas shells have been fired. None of that has helped. Manjeet is back with us. Manjeet, you were getting us an update on the situation there at the Punjab-Haryana border. Well, Akshita, as I told you that I am on the Punjab side near the Punjab and Haryana border. On my left side is Ambala and behind me is Punjab border. So all the borders leading to New Delhi have been sealed from both the sides, be it Punjab or be it Haryana. More than 5,000 police personnel have been deployed in various places in Haryana. All the roads have been barricaded. Besides this, ambulances are also in place. Bajras and water cannons are also there, have been deployed, and the entire situation is being monitored by way of drones. So all efforts are now being made not to allow farmers to march towards New Delhi. But the farmer unions have said that they will continue to march, and nearly 2 lakh farmers, including the farmer union leaders, are expected to arrive at all the Haryana borders. They said they are determined to move towards New Delhi as a protest has been planned on 26th and 27th of November. The farmer unions have said that so far their protests have been very peaceful, and during 2 months of the protests, the violence has been reported. All right, Manjeet, stay with me. I want to take this across now to Satyendra Chauhan. He is reporting live from Shambu border, which is where the protesting farmers have reached. They've not been able to go ahead from there. Satyendra, क्या updates है वहाँ पे Shambu border पे? देखिए अक्षिता, सबसे पहले मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूं। एक्चुअल में पिछले 1 घंटे से यहां पर हो क्या रहा है, देखिए आप तस्वीरें। बैरिकेडिंग को किसानों ने उठा के नीचे नदी में फेंक दिया है। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वाटर कैनन का पानी खत्म हो चुका है। जो वाटर कैनन इस्तेमाल किया जा रहा था, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गई थी, और अब देखिए पुलिस को हटाकर पीछे रैपिड एक्शन फोर्स को आगे कर दिया गया है। अगर जिस तरीके से इन किसानों ने इस बैरिकेडिंग को धकेल दिया है, उस सूरत में किसान अगर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इस हाईवे को किस तरीके से ब्लॉक किया गया है, ये देखिए। ट्रक्स लगा दिए गए हैं हाईवे के बीच में, और अक्षिता यहाँ पर ये जो टीयर गैस छोड़ी जा रही है, इसका धुआं हमारी आंखों पर भी सीधे आ रहा है, तो तकलीफ हो रही है। लेकिन ये विजुअल मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ। और ये अक्षिता, मैं आपको बताऊं कि ये जो नेशनल हाईवे है, ये हाईवे अंबाला, दिल्ली, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, जम्मू, पठानकोट तक को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये पूरा ब्लॉक किया गया है। किसानों ने कल बहुत पहले से ऐलान कर दिया था कि 26 तारीख को वो हरियाणा होते हुए दिल्ली जाएंगे। हरियाणा सरकार ने सारे बॉर्डर्स जो पंजाब और दिल्ली से लगते हैं उनको सील करने के ऑर्डर दे दिए। बाकायदा चीफ मिनिस्टर ने अपील की कि लोग घरों से बाहर ना निकले, लेकिन बावजूद उसके उस अपील के बाद भी ये किसान नहीं माने, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो बैरिकेडिंग की गई थी, लोहे की बैरिकेडिंग थी, मोटी चेन से लॉक लगाए हुए थे, सीमेंट के बैरिकेड यहाँ पर लाए गए थे, लेकिन किसानों ने उन बैरिकेड्स को फिलहाल पीछे धकेल दिया है। और जिस तरह का फोर्स पुलिस इस्तेमाल कर रही है, उससे लग नहीं रहा है कि ये हालात यहाँ पर कंट्रोल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ टेंशन बनी हुई है, तनाव बना हुआ है, और सिचुएशन पर पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के हालात यहाँ पर बन रहे हैं, लग नहीं रहा कि ये स्थिति संभल पाएगी, क्योंकि ना तो किसान पीछे हटने को तैयार हैं और ना ही पुलिस इस बॉर्डर को फिलहाल खोल रही है। तो कुल मिलाकर हालात यहाँ पर चिंताजनक बने हुए हैं। The situation definitely seems to be escalating. Looks like we could have a showdown on the cards. Unfortunately, let's hope that this is resolved peacefully. But the police pushing forward, the farmers refusing to back off. सत्येंद्र, जैसे हमको पहले दिखा रहे थे, वाटर कैनन्स यूज किया, टीयर गैस शेल्स को भी फायर किया, लेकिन किसानों हट नहीं रहा है, आगे चल रहे हैं अभी भी। जी बिल्कुल, देखिए बाकायदा कोरोना का हवाला देते हुए पुलिस लाउड स्पीकर से किसानों को ये भी समझा रही है। देखिए मेरे ठीक पीछे लाउड स्पीकर लगा हुआ है, माइक से अनाउंसमेंट की गई है कि कोरोना है, आप एक दूसरे से डिस्टेंस बनाइए, आगे ना आइए। हरियाणा में धारा 144 लगी हुई है, हाईवे को ब्लॉक किया गया है, आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन बावजूद इसके जब टीयर गैस चलती है, वाटर कैनन चलती है, तब किसान पीछे चले जाते हैं। लेकिन अब जैसे ही ये टीयर गैस व्हीकल बंद हुआ है,
वाटर कैनन बंद हुई है। देखिए फिर से किसान धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे हैं। बैरिकेडिंग जो सीधी खड़ी हुई थी उस बैरिकेडिंग को आधा टेढ़ा कर दिया है, ऊपर से नीचे नदी में भी फेंक दिया गया है। देखिए तस्वीरें शायद आपको दिखाई दे रही है अक्षिता, उस बैरिकेडिंग को पुलिस ने किसानों ने उठाकर नीचे फेंक दिया है। तो जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है, लग नहीं रहा है कि हालात कहीं ना कहीं कंट्रोल में है, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये हालात और बिगड़ सकते हैं। पुलिस ने प्लान बी भी तैयार किया है। हाईवे को देखिए किस तरीके से बंद किया है कि किसान अगर आगे बढ़े तो अपने ट्रैक्टर्स को ना ले पाए। और यहाँ पर पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया है, लेकिन यहाँ पर हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए। वो देखिए बैरिकेडिंग का क्लोजअप मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो देखिए किस तरीके से किसान एक बार फिर से बैरिकेडिंग के पास आ गए हैं और उस बैरिकेडिंग को देखिए ये बैरिकेडिंग को उठाकर, ये देखिए ये हरियाणा पुलिस के हैं, अंबाला पुलिस के बैरिकेड्स हैं, जिनको किसान एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए अक्षिता की बैरिकेडिंग को उठाकर नीचे फेंका जा रहा है और किसान एक बार फिर से आगे आ गए हैं। पुलिस लगातार बल इस्तेमाल कर रही है, लेकिन पुलिस से हालात संभल नहीं रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, शायद ये वो डर था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे हालात ना बने। किसानों ने बैरिकेडिंग को देखिए किस तरीके से नदी में फेंक दिया है और यहाँ पर किसान अब हरियाणा के बॉर्डर पर आगे बढ़ रहे हैं।